Today we are going to have a very important topic with us. That is your class full and classless IP addressing. Class full and classless IP addressing. So I'm not going to mute you people today because I want you people to ask your doubts on the same moment. Okay. Class full and classless IP addressing. This is the topic for today, and it is again one of the very important topic. If we specifically say, so it is 24th and 25th chapter of your book, one of the very important topics. So we will start with our class full IP addressing. Initially, talk about classless IP addressing. Class full IP addressing. Now I have a presentation for it. Let us see that, and time to time I will be explaining that part on the board. Let us see. Are you able to view my screen? Yes, sir. Okay, fine. Okay. Is the screen visible now, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, fine. Three people are waiting. Okay, let us start. So what is written on the screen? TCP IP. TCP IP. That is, you know this model well, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Let us start with it. So if you see, this is basically our internet, where we have various devices in between, and the various computers A, B, C, D, E are connected to each other. And this is the abstracted view of internet, where we don't know what is the background of the internet, what is happening on the background. So it is the internet seen by the TCP/IP, because we all know the internet operates on your TCP/IP model, right? Now this is the diagram you have already seen. If you remember, आपने सेशन पेपर भी दिया और उसमें आपने TCP/IP मॉडल पढ़ा होगा, ये सारे प्रोटोकॉल्स, Yes, sir. राइट? इसको दोबारा Yes. पढ़ने की जरूरत तो नहीं है. No, sir. SMTP, simple mail transfer protocol, used for emails. FTP, file transfer protocol, used for downloads and uploads. Telnet is the protocol for remote login. DNS is domain name system that converts your domain names to their IP addresses. Simple network management protocol. Then trivial file transfer protocol. If you remember, this protocol is used for diskless nodes. Then TCP and UDP. TCP is used for sending packet. UDP is for sending datagrams. In TCP, you get the acknowledgement. In UDP, you don't get the acknowledgement. TCP is reliable. UDP is unreliable. TCP is slower. UDP is faster. Then we have protocols: IGMP, Internet Group Message Protocol, sending a message to a group of people. ICMP, Internet Control Message Protocol, that is internet resources को control करना है. Messages flowing, because when you send a message, you get the notification for it, your mail has been sent. So this is ICMP doing it. Then ARP, Address Resolution Protocol, Reverse Address Resolution Protocol. We know we have two type of addresses: MAC address and IP address. So if you know the MAC address, you can find out its IP address in ARP, and if you are having a IP address, you can find the MAC address in RARP. तो ये डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं TCP/IP मॉडल. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Now I told you there are some frame formats in your syllabus. 5 टोटल फ्रेम फॉर्मेट बताए थे: ईथरनेट, टोकन रिंग, आईपी, टीसीपी एंड यूडीपी. 2 हम पढ़ चुके हैं, ईथरनेट एंड टोकन रिंग. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द आईपी पैकेट फॉर्मेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है. तो अगर आईपी के अंदर हम डेटा भेजें तो इस फॉर्मेट में डेटा इज ट्रेवलिंग. नाउ यू सी ऑन द टॉप वी हैव डेटा ऑफ साइज दिस, एंड अलोंग विद हेडर. डेटा के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाती है उसको हम कहते हैं हेडर. और हेडर में बहुत सारी चीजें हैं. हेडर का वर्जन कौन सा है? VER, 4 बिट्स का साइज है. कि इसका वर्जन कौन सा है? बिकॉज वी नो आईपी के 2 वर्जन है, IPv4 एंड IPv6. देन हेडर की लेंथ, ओके,
आपका जो हेडर जा रहा है डेटा, उसका लेंथ क्या है, उसका साइज क्या है। सर्विस टाइप बताता है डेटा की प्रायोरिटी कितनी है। देन टोटल लेंथ ऑफ डेटा, टोटल डेटा कितना जा रहा है। देन आइडेंटिफिकेशन, if you remember, transport layer had a feature called segmentation and reassembly. तो segmentation में we were dividing data into set of packets. तो पैकेट नंबर, हर पैकेट का एक पैकेट नंबर होता है जिसको हम कहते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन हमारे पास कुछ फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स आर द स्टेटस इंडिकेटर्स। ओके, देन फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज बेसिकली दी, क्योंकि हमने पढ़ा था segmentation and reassembly, so we divide data into set of packets. If you see on the board, we divide our data into set of fragments. तो हर फ्रेगमेंट का अपना एक ऑफसेट होता है, हर फ्रेगमेंट का अपना एक ऑफसेट होता है कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। अब फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट ये बताता है कि जब ये फ्रेगमेंट रिसीवर साइड पे रिसीव होगा और इसको मैं रीअसेंबल करूंगा तो ये कहां फिट होगा एक्चुअल डेटा। तो ऑफसेट बताता है कि वो फ्रेगमेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है एक्चुअल डेटा में। देन वी हैव अ फीचर कॉल्ड टाइम टू लिव। टाइम टू लिव बेसिकली जब भी आप डेटा नेट पे भेजते हैं, कहीं भी ट्रांसफर करते हैं, तो उसका एक टीटीएल टाइम होता है, टाइम टू लिव। कितनी देर के लिए वो डाटा जिंदा रहेगा, पैकेट जिंदा रहेगा अगर वो अनडिलीवर्ड है, क्योंकि इतने टाइम के अंदर तो पैकेट पहुंच ही जाना चाहिए। दिस इज टोल्ड बाय टीटीएल। अगर टीटीएल के अंदर अंदर एक पैकेट पहुंचता नहीं है तो वी से इट इज डेड। नाउ प्रोटोकॉल, अब आईपी को आप किसके साथ मर्ज करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल के साथ करेंगे। हम जनरली किसके साथ कर रहे हैं, टीसीपी के साथ, क्योंकि आईपी अनरिलायबल था और टीसीपी रिलायबल था। तो आईपी की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने उसकी एक प्रोटोकॉल से मर्जिंग करी, दैट कॉल्ड टीसीपी। देन हेडर का चेकसम वी ऑल नो इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। देन सोर्स का आईपी जिसने डेटा भेजा है, देन डेस्टिनेशन आईपी जिसको डेटा भेजा है, और हमारे पास कुछ ऑप्शनल फील्ड होती हैं, अगर फीचर में हम कोई फीचर ऐड करना चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। प्लीज this is the all fields of a IP packet format. It is very important for you. Tell me any field which you are not clear with. I can repeat. Anyone please? I repeat, version, IP का वर्जन कौन सा है, जो हेडर जा रहा है उसकी लेंथ कितनी है, सर्विस टाइप आपके डेटा की प्रायोरिटी बताता है, टोटल लेंथ ऑफ हेडर, टोटल लेंथ ऑफ डेटा सॉरी। देन आइडेंटिफिकेशन, हर पैकेट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, फ्लैग्स आर द स्टेटस इंडिकेटर्स। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट आपको ये बताता है कि जो फ्रेगमेंट आपको रिसीव हुआ है डेटा का, क्योंकि डेटा को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, तो एक्चुअल डेटा में जब रीसेंबल होगा तो कहां फिट होगा। टाइम टू लिव, कितनी देर पैकेट जिंदा रहेगा। प्रोटोकॉल किसके साथ आप आईपी को यूज कर रहे हैं, हेडर का चेकसम डिटेक्शन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। देन सोर्स आईपी, कहां से डेटा जा रहा है, डेस्टिनेशन किसको जा रहा है। एंड ऑप्शनल फील्ड आर सम एक्स्ट्रा फील्ड वी हैव फॉर इफ वी वांट टू ऐड सम न्यू फीचर to IP packet format. This IP packet format, one of the very important topics. तो पेपर में अगर ये आता है तो ये डायग्राम बनाने के बाद आपको हर फील्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और हर फील्ड का साइज भी याद करना पड़ेगा कि आइडेंटिफिकेशन 16 बिट्स का है, टाइम टू लिव 8 बिट्स का है। इज इट क्लियर एवरीवन? सर एक्सक्यूज मी, यस सर फ्लैग्स का क्या काम होगा? फ्लैग्स थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, जब हम टीसीपी फ्रेम फॉर्मेट पढ़ेंगे वहां 6 फ्लैग्स आएंगे। फ्लैग स्टेटस इंडिकेटर होते हैं, जैसे आपने कोलपी पढ़ा था, तो कोलपी में आपने 8085 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ा था, तो उसमें भी हमारे पास 5 फ्लैग्स थे, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, राइट। यस सर। तो फ्लैग स्टेटस इंडिकेटर्स होते हैं, डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा इस केस में हो सकता है, डेटा में एरर हुआ या नहीं हुआ। ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज? शुड वी मूव एवरीवन? Yes Please sir. respond. Yes sir. Yes, sir. Okay, fine. Now next an IP address. An IP address, if we talk about, we know it is of 4 bytes, because when we talk about IP addressing, we always talk about two things. One is IPv4 and one is IPv6. So IPv4 address is of size 4 bytes. Yes sir. 4 bytes means 32 bits. And you can see on your screen, I have an internet address. I have an IP address of size 32 bits. और अगर एक IP एड्रेस को देखें तो IP एड्रेस के अंदर 3 चीजें होती हैं। क्लास टाइप, कौन सी क्लास, क्लास की टाइप कौन सी है, कौन सी क्लास का है, बिकॉज हमारे पास 5 क्लासेस हैं IP एड्रेसेस। शॉर्टली हम देखने वाले।
A, B, C, D, E. We have 5 classes of IP addresses. So class type is that net ID, the network ID. कौन से नेटवर्क की बात कर रहे हैं? And host ID उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर का क्या एड्रेस है? Network ID is the ID of the network, and host ID is the ID of the host, ID of the computer under that network. तो एक IP एड्रेस के अंदर हमारे पास नेटवर्क एड्रेस भी होता है और होस्ट का एड्रेस भी होता है. चलिए नेक्स्ट. Now these are the 5 classes. These are the 5 classes you can see on your screen, but let me draw on the board for you the same thing. How it is working, we will see. So we have 5 classes: class A, class B, class C, class D and class E. तो हमारे पास IP एड्रेस भी 4 बाइट का है. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4. 5 क्लासेस की IP एड्रेसेस है हमारे पास. जो क्लास A है, इसमें पहला बाइट जो है वो नेट आईडी का है, नेटवर्क एड्रेस है, और 3 बाइट जो है वो होस्ट आईडी के. सिमिलरली क्लास B, पहले 2 बाइट जो है वो नेट आईडी है and last 2 bytes are the host ID. तो क्लास C जो है पहले 3 बाइट नेटवर्क आईडी के हैं और चौथा बाइट जो है वो होस्ट आईडी का है. क्लास D जो है ये मल्टीकास्टिंग के लिए होता है, यानी इसमें हमारे पास नेट आईडी और होस्ट आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. एंड क्लास E इज रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज. अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे. तो क्लास D और E के अंदर नेट आईडी होस्ट आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. Is it clear? Can you see on your screen? The diagram is visible in internet classes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, class D multicasting के लिए ध्यान मैं बार बार बोल रहा हूँ. Class D and class E don't have the concept of net ID and host ID. Is it clear? Yes, sir. Now, पता कैसे चलेगा कि कौन सी क्लास है? See, this is visible on your screen. Class A, if the first byte is 0 to 127. देखिए आप बात करें IP एड्रेस की 4 बाइट का है. बाइट का मतलब है 8, 8 का मतलब है 2 की पावर 8. किसी भी फील्ड की वैल्यू 0 से लेके 255 तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं. ओके, 4 बाइट्स है ना किसी भी IP एड्रेस के, तो किसी भी फील्ड की वैल्यू 255 से ज्यादा नहीं जाएगी. तो क्लास A तब पता चलता है कि IP एड्रेस क्लास A का है अगर उसका फर्स्ट बाइट 0 से लेके 127 तक. अगर वो 128 से 191 तक है फर्स्ट बाइट की वैल्यू, तो वो क्लास B IP एड्रेस है. 192 to 223 it is class C IP address. 224 to 239 it is class D IP address. And 240 to 255 it is class E IP address. ये IP अब देखिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्लास कौन सी क्लास का IP है, because we will check the first byte. If it is 0 to 127 it is class A, 128 to 191 class B, 192 to 223 class C, 224 to 239 class D and 240 to 55 it is class E IP address. और एक चीज आप ध्यान पे देखिए स्क्रीन पे, जो क्लास A है 0 to 127, पहला बाइट ग्रीन में क्योंकि वो नेट आईडी, Yes, sir. 3 होस्ट आईडी है जो मैंने अभी बताया. पहला बाइट नेटवर्क आईडी, 3 बाइट होस्ट आईडी. क्लास B 2 बाइट नेटवर्क आईडी, 2 बाइट होस्ट आईडी. क्लास C 3 बाइट नेटवर्क आईडी, चौथा बाइट होस्ट आईडी. अब इसका मतलब क्या है, चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं. जैसे कि आप क्लास C में देख सकते हैं कि होस्ट आईडी के लिए एक ही बाइट है, तो होस्ट आईडी की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक जा सकती है. तो 0 से 255 का मतलब है 256. पर हम लोअर मोस्ट और एक्सट्रीम मोस्ट वैल्यू यूज नहीं करते, तो वैल्यू बचेगी 254. इसका मतलब है क्लास C के अंदर हम कितने कंप्यूटर लगा सकते हैं? प्लीज यू नीड टू रिस्पॉन्ड. 254. 254. क्लास B 2 बाइट है नेटवर्क आईडी, तो क्लास B के अंदर आप कितने कंप्यूटर लगा सकते हैं? क्लास A के अंदर 3 बाइट है नेटवर्क आईडी, 254 into 254 into 254, तो इतने कंप्यूटर्स आप लगा सकते हैं. क्लास C में 254, it is not mentioned in the book, please note it down. Class C can support 254 computers, class B can support 254 into 254, host ID को चेक कर रहे हैं, and class A supports 254 into 254 into 254. Is it clear? So which class supports least number of IP addresses?
क्लास सी। प्लीज रिस्पॉन्ड। सर क्लास सी। क्लास सी। हाँ जी, प्लीज आंसर करिए, कौन सी क्लास मिनिमम? क्लास सी। सी सी क्लास सी, यस। क्लास बी उससे ज्यादा और क्लास ए सबसे ज्यादा, राइट? यस सर। यस सर। इज इट क्लियर यस सर। एवरीवन? यस सर। अब आपको अगर एक आईपी एड्रेस गिवन है तो आपको दो चीजें से पता चलेंगी। पहला, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, और दूसरा, उसका नेट आईडी और होस्ट आईडी वैल्यू क्या है। अगर मैं बोलूं कि एक आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? चेक करके बताइए। क्लास सी। ये क्लास क्लास सी सी। का आईपी एड्रेस है, एग्जैक्टली। तो अगर कोई बोले मेरे को कि इस आईपी एड्रेस का नेट आईडी और होस्ट आईडी निकालना है, तो क्लास सी का मुझे पता है, पहले 3 नेट आईडी होते हैं और चौथा बाइट होस्ट आईडी होता है। तो आईपी एड्रेस देखते ही मुझे उसकी क्लास पता चल जाना चाहिए और मुझे उसका नेट आईडी होस्ट आईडी पता चल जाना चाहिए। अब मुझे बताइए कि एक आईपी एड्रेस है 238.16.0.1, ये कौन सी क्लास का है? क्लास डी। तो इसका नेट आईडी होस्ट आईडी क्या होगा? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। आपको इसका आंसर ये करना है, एज दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास डी and we all know in class D and class E we don't have the concept of net ID and host ID. So its net ID host ID is not possible. Is it clear? यस सर। चलिए, let us move next. तो ये एक नेटवर्क एंड होस्ट एड्रेसेस का कुछ डायग्राम बना हुआ है, अगर आप देखें। Is it visible on your screen, यस सर। everyone? तो आप देखिए, कंप्यूटर्स को उनके आईपी एड्रेसेस मिले हुए हैं एंड इसमें कुछ बीच में डिवाइसेस यूज हुए हैं, जी आर। ये जी है गेटवे डिवाइस और आर है रूटर डिवाइस, राउटर्स जो हम यूज करेंगे अभी थोड़े एक दो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन डिवाइसेस के बारे में भी। तो ये एक आप ध्यान दीजिए इस सर्कल को, 220.3.6.0, ये एक सब नेटवर्क है, एक सब नेटवर्क है, ये एक सब नेटवर्क है, ये एक सब नेटवर्क है। तो इस सब नेटवर्क में देखिए जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, वो 220.3.6 से स्टार्ट होंगे। चेक करिए। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, इज sir. इट क्लियर एवरीवन? यस सर। प्लीज रिस्पॉन्ड Yes, sir. Yes, sir. everyone. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, am I audible to everyone? Yes sir. Okay, fine. Now we have the concept of subnetting. I hope you are able to view this diagram on your screen. Yes sir. तो आप देखिए नेटवर्क का एड्रेस है 141.14.0.0 और इस नेटवर्क को जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जितने भी आईपी एड्रेस हैं, वो सारे 141.14 से स्टार्ट हो रहे हैं। चेक करिए। Yes sir. राइट? यस सर। यस। नाउ Yes, sir. लेट अस डू इट सबनेटिंग। इसकी सबनेटिंग करेंगे, पर इसकी सबनेटिंग करने से पहले मुझे आईपी एड्रेस देखनी है। पहला सबनेट आईपी एड्रेस है 141.14.2, 141.14.2, 141.14.2। तो इसका मतलब है इन तीन आईपी एड्रेस को अलग से मैं एक सबनेटवर्क बना सकता हूं। चेक करिए, मैंने बना दिया एक अलग से सबनेटवर्क और तीनों कंप्यूटर्स को जोड़ दिए। दूसरा देखिए आप, ये वाला, तीनों आईपी एड्रेस 141.14.7 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इन तीनों का अलग से सबनेटवर्क बनेगा। चेक करिए, 7 वाला, तो तीनों कंप्यूटर उसको जोड़ दिए। तो ये है मेरा नेटवर्क विदाउट सबनेटिंग और ये है मेरा नेटवर्क आफ्टर सबनेटिंग। अब सबनेटिंग करने का फायदा क्या होता है, क्यों करते हैं सबनेटिंग? बिकॉज सपोज अ पैकेट इज कमिंग टू विदाउट सबनेटिंग पीसी, सपोज sorry, a packet comes to 141.14.2.105। अब सबनेटिंग नहीं हुई है तो सबके पास जाएगा, पता नहीं कहाँ वो पड़ा हुआ है कंप्यूटर। बट अगर वो सबनेटिंग हुई है तो वो पैकेट सिर्फ उसी सबनेटवर्क के अंदर जाएगा, क्योंकि 141.14.2 यहाँ सबनेटवर्क में और इस सबनेटवर्क में तो हो ही नहीं सकता। Yes or no? Yes sir. Because Yes. it is starting from 141.14. तो सबनेटिंग, दिस इज योर नेटवर्क विदाउट सबनेटिंग। सबनेटवर्क में नहीं तोड़ा है, दिस इज नेटवर्क आफ्टर सबनेटिंग। सबनेटवर्क करने से ये फायदा हो जाता है कि ट्रैफिक डिसेमिनेशन, जो ट्रैफिक आ रही है उसको डिवाइड कर पाना आसान होता है कि ये पैकेट इसी नेटवर्क को बिलोंग करता है तो यहीं पे जाएगा।
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इसके बाद we have with subnetting. Okay. Now ARP, RARP we all know. ARP का मतलब है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस है, उसका मैक एड्रेस है, तो आप उसका आईपी एड्रेस आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। चलिए, इसके बाद हमारे पास है यूडीपी फ्रेम फॉर्मेट। यूडीपी फ्रेम फॉर्मेट, दैट इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। चलिए, इससे पहले एक पोल कर लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू थ्रो अ पोल ऑन योर स्क्रीन, प्लीज अटेम्प्ट इट। हाँ जी, the poll is launched, please check. Please attempt it very carefully. Done, sir. Please attempt, everyone. Should I close this now? Yes, sir. Okay, going to end this poll now. Now, you can see the result of this poll. 11.34.2.16. Of course, it is a class A IP address. क्योंकि class A की range थी 0 से 127. हमारी value है 11. तो ये class A IP address है. Similarly, 192.168.0.1. ये कौन सा IP address है? Class C Class IP. C. तो क्लास A था 0 to 127, क्लास B था 128 to 191, क्लास C था 192 to 223. तो ये क्लास C IP एड्रेस है, राइट? Yes, sir. चलिए, जैसे मैंने IP फ्रेम फॉर्मेट देखा, वैसे ही हमारे पास है एक UDP फ्रेम फॉर्मेट, अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, राइट? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. UDP फ्रेम फॉर्मेट एक ऐसा टॉपिक है जो इन फ्रेम फॉर्मेट में सबसे कम एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सिंपल डेटा के साथ हेडर है, और हेडर में चार ही चीजें, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, लेंथ ऑफ डेटा एंड चेकसम फॉर एरर डिटेक्शन। आप देखिए, हमें पता है यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, इसलिए यूडीपी फ्रेम फॉर्मेट के अंदर कहीं भी एक्नॉलेजमेंट फील्ड नहीं है। यस और नो? Yes, sir. बट इफ यू सी द टीसीपी फ्रेम फॉर्मेट, तो टीसीपी में हमें पता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट आता है, तो यू कैन चेक हियर आई हैव एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो यूडीपी और टीसीपी फ्रेम फॉर्मेट में ये साफ साफ दिखता है कि टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट है और यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट। नाउ लेट अस डू दिस टीसीपी फ्रेम फॉर्मेट, द लास्ट फ्रेम फॉर्मेट। चार फ्रेम फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, ईथरनेट, टोकन रिंग, सुबह पढ़ा आईपी, थोड़ी देर पहले देखा यूडीपी, एंड नाउ दिस इज द लास्ट फ्रेम फॉर्मेट, दैट इज टीसीपी फ्रेम फॉर्मेट। तो डेटा के साथ अगेन हेडर है, इसमें सोर्स एड्रेस जहां डेटा जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस जिसने डेटा सोर्स जिसने भेजा है, डेस्टिनेशन जिसको भेजा है, सीक्वेंस नंबर ऑफ द डेटा, ओके, आपके डेटा की सीक्वेंस नंबर होगा ही होगा जब सेगमेंटेशन होगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वी नो ऑल नो टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट आता है, देन हेडर की लेंथ, देन 6 बिट्स है जो रिजर्व्ड है, ओके, इसको हम यूज नहीं करते जनरली, और हमारे पास आगे देखिए 6 फ्लैग्स हैं। इंदर ने क्वेश्चन पूछा था फ्लैग क्या है, तो अब ये क्वेश्चन आंसर करने का टाइम आ गया। फ्लैग्स 6 फ्लैग्स हैं हमारे पास, यूआरजी अर्जेंट फ्लैग, एसीके एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, पीएसएच पुश फ्लैग, आरएसटी रीसेट फ्लैग, एसवाईएन सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग एंड एफआईएन फिनिश फ्लैग। इन 6 के 6 फ्लैग की वैल्यू 0 या 1 होगी। अर्जेंट फ्लैग 1 तब होगा जब डेटा अर्जेंट है, मान लो मेरा कि डेटा क्रिटिकल डेटा है तो उसको मैं फ्लैग 1 कर सकता हूँ। एक्नॉलेजमेंट अगर ले रहे हैं तो 1 करेंगे। पुश का मतलब है कि अगर मैं नेटवर्क पे ज्यादा डेटा पुश करना चाहता हूँ, मैं नेटवर्क की थ्रूपुट बढ़ाना चाहता हूँ। रीसेट, कनेक्शन को रीसेट करना है, सिंक्रोनाइज करना है, और फिनिश बताएगा कि ये लास्ट पैकेट। सपोज मैं फिनिश को 1 कर देता हूँ तो ये लास्ट पैकेट। देन वी हैव अ विंडो साइज। व्हाट इज दिस विंडो? यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक? Yes, sir. ये स्लाइडिंग विंडो windows. प्रोटोकॉल, राइट? Yes, sir. एग्जैक्टली 16 बिट का विंडो साइज है मेरे पास। चेकसम इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन अगेन,
अर्जेंट पॉइंटर, अगर मेरा अर्जेंट फ्लैग 1 होगा तो अर्जेंट पॉइंटर उस डेटा को पॉइंट करेगा जो मेरा अर्जेंट डेटा है, जो मेरा क्रूशियल डेटा है. And option and padding are the extra fields. We use them for adding some extra features. सर पैडिंग क्या होती है? Options and padding. Padding means extra bits कुछ add करना चाहते हैं. Is it clear? यस सर. So any field which is not clear in TCP frame format, please tell. अब हम इंटरनेट के ऊपर एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं ताकि हमें कंसेप्ट पता चले आईपी एड्रेसिंग के बारे में और डेप्थ में. I hope you are able to view my screen, यस सर. everyone. Yes, sir. Just wait, please. Are you able to view my screen? यस सर. Okay, let us do one thing. I will write in the Google subnet mask calculator. अब subnet mask क्या होता है? Let us see one thing. कंट्रोल पैनल में अगर जाता हूं मैं तो और ये छोटा सा प्रैक्टिकल भी है, इससे हमें थोड़ा सा आईपी एड्रेसिंग की और ज्यादा समझ आएगी. तो इसके अंदर मैं जाऊंगा नेटवर्क्स के अंदर और नेटवर्क्स के अंदर मैं जाऊंगा अडेप्टर सेटिंग के अंदर. आई होप इज इट विजिबल टू यू एवरीवन? यस सर. Yes, sir. इसमें इथरनेट की प्रॉपर्टीज में मैं अगर जाता हूं तो वहां पे दो चीजें आती हैं. अब देखिए ये टीसीपी आईपी वर्जन 4 एंड IPv6. अब अगर मैं IPv4 में जाता हूं तो ये बताता है कि दो चीजें. ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिलेगा या मैनुअली मिलेगा. अगर मैं मैनुअली करता हूं तो मुझे खुद आईपी देना होगा. जैसे मैं करता हूं 192.168.0.1. ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास सी. क्लास सी का. ओके, तो आप देखिए सबनेट मास्क यहां पे अपने आप आ जाएगा. यस और नो? यस सर. Yes, तो sir. इस सबनेट मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू है? लेट अस सी दैट. क्लास सी में कितने बाइट नेटवर्क आईडी के हैं? पहले 3. यस सर. तो 255.255.255.0. अगर ये क्लास बी आईपी एड्रेस होता तो सबनेट मास्क क्या होता? 255.255.0.0. एग्जैक्टली. अगर क्लास ए होता तो 255.0.0.0. एग्जैक्टली. अब हम ये देखने वाले हैं, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं और हम ये देखने वाले हैं अब कि सबनेट मास्क की इंपॉर्टेंस क्या है. तो गूगल में मैंने लिखा था सबनेट मास्क कैलकुलेटर एंड यहाँ पे एक साइट खुलना चाहिए subnetmaskcalculator.com. चलिए ये देखते हैं इसमें क्या है. आईपी सबनेट कैलकुलेटर. ओके, थोड़ा सा एग्जैक्ट लिंक नहीं मिला मुझे. सबनेट मास्क कैलकुलेटर, यहाँ पे साइट होना चाहिए subnetmaskcalculator.com.
Are you able to view the screen? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए मैं Yes, यहाँ sir. मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ क्लास सी, राइट? Yes, sir. और ये आईपी एड्रेस है 192.168.0. क्लास सी का आईपी एड्रेस है। सबनेट मास्क देखिए क्या है जो हमने बोला था भाई ये। Yes, sir. और आपको पता है क्लास सी कितने कंप्यूटर सपोर्ट करती है? अभी हमने बात करी थी 254. अभी हमने बात करी थी 254, राइट? 254। और आप नीचे देखिए होस्ट एड्रेस रेंज कितनी है, 1 से लेके 254 बता रहा है। यस और नो? Yes, sir. अब Yes, आप sir. देखिए मैं सबनेट मास्क की वैल्यू चेंज करने जा रहा हूं। मैंने क्या सिलेक्ट किया? 128 128. और टोटल मेरे पास कितने थे? 254। यस और नो? क्लास सी में कितने कंप्यूटर सपोर्ट कर सकते हैं? 254. अब आप इसको थोड़ी देर होल्ड पे डालते हैं इसको। आप स्क्रीन पे देखिए बोर्ड पे क्लास सी कितने आईपी एड्रेस सपोर्ट करती है? Sir, 254. 254, एग्जैक्टली 254। अब मुझे ये बताइए अगर मुझे 300 आईपी एड्रेस चाहिए हो तो मैं कौन सी क्लास यूज करूं? क्लास यूज कर सकता हूं क्या? सर नो, प्लीज रिप्लाई। No, sir. क्योंकि मुझे 300 चाहिए और sir. मेरे पास कितने हैं? 254. 254. मुझे क्लास बी के लिए जाना पड़ेगा या फिर मेरे पास एक और कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। बट मान लीजिए मुझे 200 कंप्यूटर लगाने हैं अपनी लैब में, तो कौन सी क्लास में? Sir, class C. क्लास C. सी, एग्जैक्टली Class क्लास C. सी, एग्जैक्टली। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ एक प्रॉब्लम है। सब आई नीड 200 आईपी एड्रेसेस, क्लास सी सपोर्ट 254 एक्स्ट्रा आईपी एड्रेसेस। Yes, sir. और अगर मैं क्लास सी लेता हूं तो मुझे 54 एक्स्ट्रा आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करना होगा। Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. क्योंकि sir. मुझे चाहिए 200 आईपी एड्रेस, मेरे पास क्लास सी में 254 है, 54। अब मुझे 54 एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस नहीं चाहिए और मुझे इनको ब्लॉक करना है, क्योंकि अगर मैं इनको ब्लॉक नहीं करूंगा तो कोई भी अटैकर आईपी स्पूफिंग करके इनको मिसयूज कर सकता है। तो मुझे एक्स्ट्रा 54 आईपी एड्रेस को क्या करना है? Block. ब्लॉक। और इसमें मुझे सबनेट मास्क हेल्प करेगा। Yes, sir. ओके, लेट अस सी नाउ, सबनेट मास्क की वैल्यू कितनी है? 255.255.255.0. .0। Yes, sir. अब मेरे को अगर 0 है तो मेरे को पूरे के पूरे 254 आईपी एड्रेस मिलेंगे। आप नीचे देखिए होस्ट एड्रेस रेंज में 1 से लेके 254 तक पूरे आईपी एड्रेस मिल रहे हैं। Yes, sir. बट अगर मैं सबनेट मास्क की वैल्यू चेंज करूं, मैं कहता हूं 128, तो मेरे पास टोटल कितने थे? हाँ जी, टोटल कितने थे? Sir, 254। 254. Yes, sir. हाँ, तो 254 माइनस 128 126. 126. ओके, चेक करिए नीचे होस्ट रेंज। Yes, sir. Yes, sir. यानी कहने का मतलब है अगर मैंने 128 लास्ट बाइट में कर दिया है तो इतने आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाएंगे और उस 254 से माइनस करके उतने आईपी एड्रेस मुझे मिलेंगे। अब मैं दोबारा चेंज कर रहा हूं, चेक करिए। 128 से 192, तो 254 माइनस 192 191 तक मिलेंगे सर। 254 माइनस 192 190 254 माइनस 192 62 चेक करिए नीचे होस्ट रेंज। यस सर। तो चाहे मैंने क्लास सी ली है पर मुझे 254 Yes, आईपी एड्रेस नहीं मुझे मिलेंगे, मुझे ये मिलेंगे 62 क्योंकि वो मैंने सबनेट मास्क की वैल्यू इसलिए चेंज करी थी क्योंकि ये डिसाइड करेगा मैं कितने कंप्यूटर ब्लॉक करना चाहता हूं, कितने आईपी ब्लॉक। अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरे को 54 एक्स्ट्रा, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, मुझे 200 कंप्यूटर लगाने हैं तो 54 आईपी एड्रेसेस आर देयर, तो आप मुझे ये बताइए सबनेट मास्क की वैल्यू क्या होगी? मुझे 200 आईपी एड्रेस चाहिए। एनीवन? सर 255.255.255.54 एग्जैक्टली डॉट 54 करने से 254 में से 54 माइनस करेगा और मेरे पास 200 आईपी एड्रेस बचेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो सबनेट Yes, मास्क की sir. हेल्प से
हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे अगर जितने आईपी एड्रेस क्लास सपोर्ट करती है मुझे उतने नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो सबनेट मास्क की हेल्प से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Yes or no? Everyone, please respond. Yes, Is it sir. clear, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये था क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। तो क्लास ए, बी, सी, डी, ई, 5 क्लासेस वी हैड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. आपको मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि क्लास ई सपोर्ट्स 254 आईपी एड्रेसेस, आई नीड 200। तो हमने क्या किया? सबनेट मास्क यूज किया। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बट सपोज दूसरा सिनेरियो, मेरे पास क्लास सी 54 आईपी एड्रेस देती है, मुझे 300 चाहिए, क्या करूं? हाँ जी बताइए, क्या करूं? क्लास सी मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है। Sir, but class Class B B. में वेस्टेज हो जाएगी काफी। एग्जैक्टली सब लोग यही आंसर देंगे शायद कि 254 आईपी आपके पास है, आपको 300 चाहिए, तो आप क्लास सी तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि क्लास सी आपकी जरूरत पूरी करेगी नहीं। 300 चाहिए है तो कुछ लोग बोलेंगे क्लास बी यूज कर लो। बट अगर आप 254 को 254 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी एज कंपेयर टू द आईपी एड्रेसेस यू नीड। Yes, sir. तो इसमें ना तो मैं क्लास सी यूज कर पाऊंगा और ना ही मैं Class B. क्लास बी Class यूज B. कर पाऊंगा। तो यहां पे सॉल्यूशन है कि हम क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे Classless. क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग क्यों यूज कर रहे हैं? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. क्लासफुल में कोई भी क्लास मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही। मुझे 300 चाहिए, क्लास सी 254 देती है, क्लास सी में ले नहीं सकता, क्लास बी लेता हूं तो बहुत सारे आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. So we will use the concept of classless IP addressing. Classless IP addressing is also known as CIDR. That is classless interdomain routing. Classless interdomain routing. It is also known as classless IP addressing. Now let us see that concept. I will again share the screen and show you what is classless IP addressing. Are you able to view my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. हाँ जी पढ़िए। जो अभी हमने बात करी इसके बारे में पढ़िए। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? क्लास सी 254 आईपी एड्रेस देती है और क्लास बी देती है 254 into 254। आपको 300 चाहिए, तो क्लास बी और क्लास सी और दोनों ही आपकी जरूरत नहीं कर पाएंगे। ये क्लास सी सपोर्ट ही नहीं करती है उतने आईपी एड्रेस, और क्लास बी में इट विल लीड टू अ ग्रेट डील ऑफ आईपी एड्रेस वेस्टेज। यस और नो? Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट है क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग का। यहां हम यूज करेंगे क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है अब आप देखिए स्क्रीन पे। तो अगर आपके आईपी एड्रेस में, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं साइज में, आप इस आईपी एड्रेस को देखिए, इस आईपी एड्रेस के साथ /28 लगा हुआ है। यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. तो जब भी आप एक आईपी एड्रेस के साथ स्लैश देखें तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन इट इज नॉट अ क्लासफुल आईपी एड्रेस, इट इज अ क्लासलेस आईपी। समझ आई बात? जब भी आप एक आईपी एड्रेस देखें इस तरह का जिसके साथ स्लैश कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तो ये क्लासफुल नहीं, कौन सा एड्रेस है? Classless IP. क्लासलेस आईपी एड्रेस है। अब इसकी एग्जांपल नीचे गिवन है कि अगर मेरे पास एक आईपी एड्रेस है /25, इसका मतलब क्या है? अब देखिए इसका मतलब क्या है। कहता है आपको एक आईपी एड्रेस गिवन है 172.16.0.0/25। इसमें आप निकालिए कि कितने सबनेट यूज होंगे और एक सबनेट में कितने कंप्यूटर लगेंगे, कितने होस्ट लगेंगे। कहते हैं जैसा कि ये क्लास बी आईपी एड्रेस है, यस और नो? Yes, sir. तो क्लास बी में कितने बाइट का नेट आईडी होता है? 2 bytes. 2 बाइट यानी 16। Yes, sir. यस। Yes, और sir. स्लैश वैल्यू 225 25 सॉरी। तो आप सबनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 25
minus the number of bytes of the host 16 था, तो 25 minus 16 that is 9, 2 raised to power 9, यानी इतने सबनेट लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं ताकि आपको विजिबल अच्छे से हो। /25 का मतलब है, और इससे हम ये क्लास ये देख सकते हैं, हम क्लास बी आईपी एड्रेस है, 0 से 127, 128 से 191 क्लास बी आईपी एड्रेस है, 2 बाइट फॉर होस्ट आईडी दैट इज 16, तो 2 वैल्यू में गिवन है 25, 2 की पावर 25 माइनस 16 यानी 2 की पावर 9, 512 सबनेट हम लगा सकते हैं। और एक सबनेट में कंप्यूटर कितने लगेंगे, हमें पता है आईपी एड्रेस जो है वो B4 है, तो 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है। चेक करिए, 2 की पावर 32 माइनस दिस वैल्यू, Yes. वो आएगा 2 की पावर 7, -2 निकालना पड़ता है क्योंकि हमें पता है ना 0 यूज करते हैं और लास्ट वाला ना 255 यूज करते हैं, दो वैल्यू कम करनी पड़ती है। तो 128 माइनस 2 दैट इज 126, इतने कंप्यूटर आप लगा सकते हैं। ये एग्जांपल है एक क्लासलेस आईपी एड्रेस की, जिससे हम नंबर ऑफ सबनेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर सबनेट निकाल सकते हैं। और इसमें आप देखिए, आपको पता है मैंने ये बताया कि क्लासलेस इंटरडोमेन रूटिंग हम इसको कहते हैं। ओके, ये हमने अभी पढ़ा। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि एक ब्लॉक, एक क्लासलेस इंटरडोमेटिंग रूटिंग ब्लॉक के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस होंगे वो कॉन्टिग्यूअस होंगे। कॉन्टिग्यूअस मतलब रैंडम नहीं होंगे, वो एक ऑर्डर में होंगे, 1 फिर 2 फिर 3, और जितने भी आईपी एड्रेस एक ब्लॉक में होंगे वो हमेशा 2 की पावर में होंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से होंगे। और द साइज, एक साइज का ब्लॉक डिपेंड करेगा उसमें कितने आईपी एड्रेस है, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, साइज 2 की पावर में होगा। यस और नो? Yes, sir. अब आप एक और एग्जांपल sir. देखिए, नीचे लिखा हुआ है, कहता है इस आईपी एड्रेस 182 ये क्लासलेस आईपी एड्रेस है। अगर हम देखें तो इस आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, 182.0.1.2/28 स्लैश जब भी लगेगा तो ये क्लासलेस Classless. आईपी एड्रेस है। अब इसमें देखिए आप, इट इज टेलिंग 28, तो ये 28 बिट्स जो है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क बताएंगे। ये 28 का मतलब होता है, ये बताएगा कि 28 बिट्स जो है वो हम यूज कर रहे हैं नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए। और टोटल हमारे पास 32 है, 32 माइनस 28 4, बाकी 4 हम यूज करेंगे होस्ट के कंप्यूटर के लिए। तो 28 दिस वैल्यू विल टेल यू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, एंड 32 माइनस 28 यानी 4 बिट्स यूज करेंगे आप होस्ट के लिए। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग ये कभी यूज करेंगे जब कोई भी क्लास मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही। ओके, Yes, sir. ये ट्यूटोरियल I will share today in the group all the content we have studied, but let us do one more poll for it. Second poll we are going to start. Okay, I have launched the poll. Please check. Please attempt it. Done, sir. Sir, excuse me. Just wait. Let the poll end. Should we end this poll now? Yes, sir. Okay, going to end this now. If you see, the classless IP address is also known as CIDR, classless interdomain routing. And the classless IP addressing says the IP address must be Contiguous. contiguous. 8 लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं रैंडम होना चाहिए। बोथ वाले भी हैं, नन वाले भी हैं। चलिए, is it clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. This was classful IP addressing and classless IP addressing. Now we are going to have a new topic with us. That is IPv6.
सर सबनेट बिटमैप क्या होता है? हाँ जी, सबनेट बिटमैप। सबनेट जब हम करते हैं किसी नेटवर्क का, तो उसका बिटमैप डिफाइन करना पड़ता है, उसकी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बिटमैप का बेसिक पर्पस होता है कि कौन से कंप्यूटर कौन से सब नेटवर्क में आएंगे। यस सर। Okay, now we are going to see another topic. Let me share my screen again. Share screen. Are you able to view my screen? यस सर। चलिए मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो। The topic title is IPv6. Now we all know that we have two classes of IP address, IPv4 and IPv6. 6. So IPv4, IPv6, IP address 4 bytes and IP address 6 byte 16 bytes. 16 bytes। यस तो 4 byte मतलब 32 bits। यस सर। तो इसका मतलब है 2 raised to power 32 कंप्यूटर लगा सकते हैं। And 16 byte means 128 bits यस सर। and 2 raised to power 128 कंप्यूटर लगा सकते हैं। Because IPv6 की जरूरत इसलिए पड़ी because the number of IPv4 was had started depleting. Depleting मतलब the number of IP addresses supported by IPv4 were not sufficient. क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर बढ़ रहे हैं, होस्ट बढ़ रहे हैं, तो IPv4 के अंदर नंबर ऑफ IP एड्रेसेस आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द नीड। तो हमें एक नई IP एड्रेसिंग की जरूरत थी, IPv6। आप देखिए विंडोज 7 ऑनवर्ड जितनी भी विंडोज हैं उस दोनों सपोर्ट करती हैं, IPv4 भी और सिक्स IPv6 भी। यस तो लिखा हुआ है इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, IPv4 के अंदर डिप्रेशन हो रही है, खत्म हो रहे हैं IP एड्रेस, तो हम IPv6 यूज करेंगे। अब आप ये लिखा हुआ है IPv4 के अंदर 32 बिट IP एड्रेस है, 232 मतलब इतने कंप्यूटर लगा सकते हैं, और IPv6 is having 128 bits, तो इतने ज्यादा, that is extremely huge number of computer you can use in IPv6, right? Now let us see कि IPv6 में एक IP एड्रेस कैसा दिखने को लगता है। अब देखिए स्क्रीन पे आपको IPv6 की एग्जांपल की मैं, अगर आप ध्यान से देखें X:(X:(X:)(X:)(X:)(X), तो ये एक नीचे एग्जांपल है IPv6 के IP एड्रेस। यस, तो Yes, इसकी इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिसमें हर ग्रुप के अंदर 16 बिट्स हैं, 4 4 8 4 12 4 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना 2 रेज़ टू पावर 4, इसलिए। और ये हेक्साडेसिमल में होता है हमेशा। जो IPv4 था वो डेसिमल फॉर्म में था, IPv6 किस फॉर्म में है? हेक्साडेसिमल में। तो आपको इसमें ABCD भी दिखेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमें पता है F तक जाता है। यस सर। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ यू चेक IPv4 के अंदर हमारा IP एड्रेस इस फॉर्म में था, 192.168.0.1। तो उसमें हमारा IP एड्रेस जो था वो डेसिमल फॉर्म में था, यहाँ हेक्साडेसिमल फॉर्म में, वहां डॉटेड फॉर्म, बीच में डॉट सेपरेटर थे, यहाँ कॉलन सेपरेटर। ध्यान दीजिए, Yes, sir. यहाँ पे है IPv4 और IPv6 का एग्जैक्ट डिफरेंस। इफ यू सी, IPv4 1981 में आया था, IPv6 1998 में लॉन्च हुआ था। 32 बिट IP एड्रेसेस टू 128 IP एड्रेसेस, डेसिमल में था, हेक्साडेसिमल में था IPv6। अच्छा, एक और कांसेप्ट यहाँ पे आया, क्लास A में मैंने आपको बताया क्लास A IP एड्रेस आर फ्रॉम 0 to 127, 7 बट 127 हम कभी यूज नहीं करते। क्लास A जनरली इज 0 to 126, क्योंकि 127 जो है ना, इसको हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। और ये लूप बैक एड्रेस किसमें है, किसकी बात कर रहे हैं? IPv4 IPv4 की। ये IPv4 का लूप बैक एड्रेस है। अब लूप बैक एड्रेस का पर्पस क्या होता है? जब कुछ लोग वेबसाइट बनाते हैं तो सेम ही कंप्यूटर सर्वर होता है, सेम ही कंप्यूटर पे वो वेबसाइट खोलते हैं, तो हमें उस कंप्यूटर को ही सर्वर बनाना पड़ता है उस केस में। Yes, sir. ऐसे केसेस में हमें उसको एक लूप बैक एड्रेस चाहिए होता है।
वो IPv4 में it is 127.0.0.1 and in IPv6 it is :1. Okay. Now next difference is IP security. ये IPv4 में ऑप्शनल है और IPv6 में हमेशा रहती है. ओके. फ्रेगमेंटेशन होस्ट एंड राउटर करते हैं, उसमें कोई भी कम्युनिकेशन एंड पॉइंट कर सकता है. चेकसम इसमें है, उसमें नहीं है. IPv6 में ऑप्शनल फील्ड जो है हेडर में V4 में है, V6 में नहीं है. और अगर और बात करें रूटर डिस्कवरी, रूट की डिस्कवरी करनी है, वो ऑप्शनल है IPv4 में. IPv6 में मैंडेटरी है. और IP कॉन्फ़िगरेशन, IP असाइन करना, वो मैनुअल और DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन दोनों हो सकता है. मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है. और उसमें DHCP का वर्जन 6 है, द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ IP एड्रेसेस है. तो ये डिफरेंसेस है IPv4 और IPv6 में. पहले आपको ये पता होना चाहिए IPv6 होता क्या है, क्या जरूरत है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसका IPv4 और IPv6 का डिफरेंस. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो Yes, आज sir. के टॉपिक में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी. हमने पढ़ा क्लासलेस. एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं. एक हमने IPv4 IPv6 का डिफरेंस पढ़ा. एक हमने क्लासलेस IP एड्रेसिंग पढ़ा. उसके बाद हमने we saw this PPT. एक बार क्विक गो थ्रू करेंगे कि इस PPT में हमने क्या क्या देखा. तो इस IP इसमें हमने एक इंटरनेट का लेआउट देखा. देन TCP/IP मॉडल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं. IP फ्रेम फॉर्मेट पढ़ा हमने आज. देन IP एड्रेस पढ़ा. 2 बाइट, उसमें 2 चीजें होती हैं, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी. देन क्लास A B C D and E. क्लास A 1 बाइट नेटवर्क आईडी, 3 बाइट होस्ट आईडी. क्लास B 2 बाइट नेटवर्क आईडी, 2 बाइट होस्ट आईडी. क्लास C 3 बाइट नेटवर्क आईडी, 4 बाइट होस्ट आईडी. क्लास D and E are used for multicasting and reserved for future use. क्लास C को तब यूज करेंगे जब कभी फ्यूचर में जरूरत होगी. But class D and class E do not support the concept of net ID and host ID. This we have already talked. तो एक IP एड्रेस को देखते ही पता चल जाना चाहिए वो कौन सी क्लास का है और उसका नेटवर्क आईडी कौन सा है और होस्ट आईडी का. इस डायग्राम में बड़ा अच्छे से समझाया है. जैसे क्लास A 0 is the net ID, first byte is the net ID, 3 byte is the host ID. Class B 2 byte are the net ID, 2 byte are the host ID. Class C 3 byte are the net ID, 4 byte is the host ID. And class D and E do not support the concept of net ID and host ID. But you must remember values. Class A 0 to 127, class B 128 to 191. IP एड्रेस को देखते ही उसकी क्लास पता चल जाना चाहिए और उसका नेट आईडी और होस्ट आईडी पता चल जाना चाहिए. 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक IP एड्रेस गिवन हो और आपको बोले कि इसका नेट आईडी और होस्ट आईडी निकालो. तो अगर IP एड्रेस के बारे में अच्छे से उसकी क्लासेस का पता होगा तो ही कर पाएंगे. उसके बाद हमने एक नेटवर्क देखा, फिर हमने सबनेटिंग देखा, एक नेटवर्क को सब नेटवर्क में कैसे तोड़ना है. आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. ओके. तो IP एड्रेसेस के बेस पे जैसे इसके पहले 3 बाइट सेम है तो इसका सब नेटवर्क हम बना सकते हैं. चेक करिए बनाया हुआ. इसी तरह इफ यू चेक 141.14.22 14.22 14.22 इन तीनों का अलग से एक सब नेटवर्क बनाया जा सकता है. चेक करिए 14.22 और तीनों कंप्यूटर्स को जोड़ूंगा. सबनेटिंग करने का मेन एडवांटेज इज यू आर एबल टू डिवाइड योर ट्रैफिक, बिकॉज अदरवाइज वो पूरे नेटवर्क में घूमता रहेगा. अब वो सिर्फ सब नेटवर्क में ही जाएगा डाटा कोई भी सेंड करना है तो. और दिस इज विदाउट सबनेटिंग, दिस इज विद सबनेटिंग. देन IP एड्रेस की बात करी हमने, नेट सबनेटिंग की. एंड उसके बाद ARP की. फिर हमारे पास फ्रेम फॉर्मेट आ गया. UDP फ्रेम फॉर्मेट, 4 फील्ड्स, सोर्स, डेस्टिनेशन, जिसने डाटा भेजा, जिसको भेजा, टोटल लेंथ ऑफ डेटा एंड चेकसम इज फॉर एरर डिटेक्शन. UDP फ्रेम फॉर्मेट जनरली नहीं आता है पेपर में, या तो पेपर में आता है आपका IP फ्रेम फॉर्मेट या फिर वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ TCP फ्रेम फॉर्मेट. तो इसमें सोर्स एड्रेस, जिसने भेजा, डेस्टिनेशन, जिसको भेजा, सीक्वेंस नंबर ऑफ द डेटा, एक्नॉलेजमेंट आती है TCP में, इसमें है हेडर लेंथ, रिजर्व्ड 6 बिट्स, 6 फ्लैग्स, अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइज, फिनिश. Then window size, we already know sliding window size we are talking about. Checksum is for error detection. Urgent pointer is the pointer which points to some data which is important or crucial. Then we have option and padding field. This we can use if we want to add some extra feature to this TCP frame format. In future, if we think of
that we can add some extra feature to this frame format, so we can go for option and padding, right? चलिए जी, तो आज हमारा सारा कॉन्सेप्ट यही था। आज आपको हमने आईपी एड्रेसिंग देखा, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग देखा, IPv6 देखा। इन सब का नोट कंटेंट एंड वीडियोस आई विल शेयर immediately after this lecture, but please tell me if you are having doubt in any topic, or you think you are not clear with any topic. You can raise your hand, you can ask. Indrajit is there, yes. Sir, हम .255 or .0 Indra, you are not audible. Sir, in class C, Indra, we you are not audible at all. sir, हम class C में Yes, Indra. sir, I am audible. Am I audible to all? Raise your hands. Okay, am I audible to everyone? But anybody else? Maybe there's some problem with Indra connection. Anybody else having any doubt? Indra, you can type and ask Sir, excuse me. in chat box. If anybody is having any doubts, please you can ask your questions. Sir? Excuse me, sir. Prateek Jyot. Prateek, please. सर क्लास डी में जो मल्टीकास्टिंग एड्रेस वो नहीं क्लियर हुआ। Okay, class D, right? यस सर, मल्टीकास्टिंग Huh. एड्रेस। When we know what we studied three type of casting: unicasting, multicasting, broadcasting. If you remember, unicasting Yes, sending a sir. message to a single person, multicasting when we want to send a message to a group of people, and broadcasting sending a message to all. Right? So when we have Yes, sir. when we have to do multicasting, then we will use class C IP addresses. ओके सर। Anybody else? Anybody else, please? Inder, you can try again if your voice is audible to me. Sir, in class C, Yeah. why we can't use .255? Actually last- क्या है, extreme values we don't generally use. It is as per the rules. जैसे CIDR में ruling था like addresses must be contiguous, it must be raised to power of 2. Like similarly we have a ruling for it. We do not use the extreme values 0 and 255. वो दो निकाल के हमारे पास 256 में से 254 बचते हैं. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Any other questions? I hope please raise your hand if you are clear with वो subnet mask calculator जो मैंने दिखाया था. Subnet mask की क्या importance है? Please raise your hand if the topic is clear. Or if you say I can repeat that, we can repeat that a small practical in form of practical जैसे हमने पहले देखा. Is it clear everyone? तो सबनेट मास्क का बेसिक काम होता है IP एड्रेसेस को ब्लॉक करना, रिस्ट्रिक्ट करना. Like I told you, class C supports 254 IP addresses, but if I need only 200, then I can use subnet mask for it. और आपने देखा था जब कंप्यूटर के अंदर मैंने उसको IP एड्रेस दिया तो सबनेट मास्क अपने आप आ गया था वहां, क्योंकि वो IP एड्रेस के बेसिस पे ही निकलता है. But I can use subnet mask effectively to restrict the number of IP addresses in my network. Class C supports 254. I need only 200. So I can use subnet mask to restrict the number of IP addresses to 200. आप सब लोग एक बार सबनेट मास्क कैलकुलेटर जरूर चला के देखिएगा, ताकि एग्जैक्टली आपको भी क्लियर हो जाए कि कैसे चलता है. उसमें अलग अलग IP एड्रेस सेलेक्ट करिए, क्लास A, फिर B, फिर C, फिर सबनेट मास्क की वैल्यू चेंज कर करके नीचे देखिए होस्ट रेंज क्या आती है, तो आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबनेट मास्क. यस इंदर, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर आपने साइबर सिक्योरिटी के ट्रेनिंग में एक चीज करवाई थी लूबैक एड्रेस के साथ कि हाँ. जैसे हमने किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना है, तो सर वो प्रैक्टिकल हो जब मैंने परफॉर्म किया तो चल नहीं रहा वो था. विंडोज 10 का कुछ दिक्कत है, विंडोज 10 की सिक्योरिटी उसको नहीं करने देती. अगर आप विंडोज 7 Yes, sir. तक करोगे उसको करेगा वो. यस उसके सर, वो उसके सेव ही नहीं थी. हाँ, उसके और मेथड्स है विंडोज 10 के, क्योंकि विंडोज 10 इज द मोस्ट सिक्योर विंडोज यू नो टिल डेट.
इवन हमने जो उसमें सैम फाइल का कॉन्सेप्ट देखा था, अगर आपको याद हो। यस सर, सैम तो फाइल वो हाँ को सेव ही नहीं करने देता सैम फाइल हाँ को। हाँ, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस विंडोज 10 में बढ़ा दी गई हैं उसकी। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? Excuse me, sir. यस यस यस, अंगद। सर जो 127.0.01 है सर, ये लोकल होस्ट होता है? ये लोकल होस्ट, राइट राइट राइट, लूपबैक एड्रेस। क्योंकि आपका एड्रेस ना हमेशा इस तरह से होता है लूपबैक एड्रेस में भी, 127.0.0.1/8090, अगर आपने देखा होगा। तो ये तो आपका लूपबैक एड्रेस है। ये क्या है? दिस इज द Port पोर्ट number. नंबर, दिस यस इज द सर। पोर्ट नंबर ऑन which it is operating. हम जानते हैं HTTP का पोर्ट नंबर 80 है और HTTPS का 443 है। तो हर प्रोटोकॉल के अपने पोर्ट नंबर ही भी हैं। अगर आपको सेक्शन ए के नोट्स अच्छे से आपने पढ़े थे सत्संग में, तो उसके लास्ट पेज पे प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर भी गिवन थे। यस सर। ओके, तो कुछ बेसिक प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर आपको याद रहने चाहिए। टोटल पोर्ट कितना होता है कंप्यूटर में? आदित्यनाथ झा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्यनाथ झा, यू आर नॉट लिसनिंग। आंचल शर्मा, आंचल शर्मा, Good morning, sir. good morning. Anchal, what is the total number of ports in the computer? Hello, sir. What is the total number of ports in the computer? Uh, We have discussed this in class. Yes or no, everyone? यस सर। Anisha Mahajan, Good morning, sir. good morning. Anisha, what is the total number of ports in the computer? Sir, I guess 32. 32. नो It सर। was 65536. 65 Yes, sir. I told in the class 65536, out of which few ports are reserved, like 25 पोर्ट नंबर रिजर्व है SMTP के लिए, मेल ट्रांसफर के लिए। जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं HTTP पोर्ट नंबर 80, HTTPS पोर्ट नंबर 443। तो कुछ प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर फिक्स है और कुछ पोर्ट नंबर जो है अनरिजर्व्ड होते हैं, उनको हम रीयूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारा सिलेबस कुछ खत्म होता है नेटवर्क्स का, तो कुछ ऐसी चीजें वी विल सी प्रैक्टिकली ऐसे ही जूम पे, जैसे आज हमने सबनेट मास्क कैलकुलेटर देखा। इसी तरह हम प्रॉक्सी लगाना देखेंगे, VPNs को देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि चीज एक सब्जेक्ट की नॉलेज तब तक नहीं बढ़ती है जब तक उसको प्रैक्टिकली चला के नहीं देखेंगे चीजों को। ओके, तो कुछ साइबर के प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पे भी परफॉर्म करने की आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ताकि हमें सब्जेक्ट्स के बारे में उतना डेप्थ के अंदर इंफॉर्मेशन। ये पोर्ट स्कैनिंग, दिस ऑल वी कैन डू इंटरनेट के ऊपर। अगर आप देखें तो लेट मी शो यू समथिंग। आर यू एबल टू व्यू माय स्क्रीन? यस सर। Yes, Yes. sir. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ google.com एंड अच्छा, एक चीज इसमें जो हम देखते हैं, व्हाट इज माय IP एड्रेस। अगर मैं इंटरनेट के ऊपर हूं तो मेरे कंप्यूटर को एक IP एड्रेस मिला होगा। यस सर। तो दिस इज दैट IP एड्रेस। आप देखिए, ठीक है जी। यस सर। IPv4 पे हूँ, ये पंजाब के अंदर मेरी लोकेशन भी दिखा रहा है। और क्वाड्रेंट का मैं इंटरनेट सर्विसेज यूज कर रहा हूँ अमृतसर पंजाब से इस टाइम पे, इंडिया से ये कनेक्शन इस टाइम कनेक्टेड। यस और नो? Yes, sir. और ये IP एड्रेस है इस टाइम पे जो IETF ने मुझे दिया है, और मुझे इस टाइम पे ट्रेस भी किया जा रहा है। इफ यू ट्राई टू सी, अगर मैं देखूं डॉस के अंदर जाके कि मेरे इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, तो गेट मैक से मेरे को 6 बाइट का मैक एड्रेस मिल जाएगा। यस सर। Yes or no? यस सर। Everyone, Yes, sir. am I audible? यस sir. सर। Yes, Okay, sir. okay, fine. और फाइनली मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा नेट कनेक्शन चल रहा है या नहीं, तो मैं लिखूंगा ping google.com।
तो यस सर। ये मुझे बताएगा। अगर वहां से रिप्लाई आता है तो मीन नेट इज कनेक्टेड। सी रिप्लाई आ रहा है वहां से, आप देख रहे हैं। यस सर। तो ये हमारा गूगल का इस टाइम पे आईपी एड्रेस है जहां से मेरे को रिप्लाई आ रहा है। ये रिप्लाई का मतलब है जो डाटा भेजते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही है। चार पैकेट मैंने भेजे, चारों की एक्नॉलेजमेंट आ रही है। तो देखो 4 पैकेट सेंड हुए, चारों रिसीव हुए, लॉस वाज 0%। तो पिंग कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि और पिंग में पैकेट कितने साइज का जाता है? सर बाय डिफॉल्ट 32 बाइट्स, राइट। एंड देखिए ये हमने टीटीएल पैरामीटर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आईपी Yes, पैकेट sir. फॉर्मेट में, टाइम टू लिव। और टाइम टू लिव के अंदर एक वैल्यू होगी, ये बेसिकली बताता है हमारा ओएस कि गूगल जिसको मैं पिंग कर रहा हूं उसका ओएस क्या है, उसकी वैल्यूज हैं। अगर उसकी वैल्यू 80 से इतनी वैल्यू है तो वो विंडोज है। अगर 100 से 120 है तो वो लाइनक्स है। इस तरह से। तो टीटीएल मुझे ये भी बताता है कि रेसिपिएंट कंप्यूटर जिसको मैं गूगल पिंग कर रहा हूं उसका ओएस कौन सा है। लाइनक्स सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये वही है, डाटा भेजा और वहां से रिप्लाई आया, वहां से एक्नॉलेजमेंट आया। इसी तरह हमारे पास एक कमांड होती है ping -t -l 65530, सॉरी 65530 and google.com. Sorry, bad parameter के लिए अब देखिए गूगल रिप्लाई नहीं करेगा इसको, जैसे पहले किया था उसने रिप्लाई। यस सर। क्यों नहीं रिप्लाई किया इंदर? पैकेट साइजिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, आप देखिए जनरली पैकेट साइज का क्या जा रहा था? 32 बिट और 32 मैंने पैकेट का बाइट्स साइज क्या, मैंने पैकेट 32 साइज क्या भेजा? 6500 क्योंकि 65,000। मैंने इतना बड़ा पैकेट गूगल को भेजा कि गूगल ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसको हम जनरली कहते हैं पिंग डीडोस ऑफ डेथ। पिंग ऑफ डेथ, इसको हम क्या Yes, कहते हैं? पिंग ऑफ डेथ। डेथ। अब मान लो आप एक वेबसाइट बनाते हो और मैं चाहता हूं कि वो वेबसाइट लोग खोल ना पाए, तो मैं ये वाली पिंग कमांड आपको बार बार भेजूंगा और उससे आपकी साइट स्लो हो जाएगी। क्योंकि बहुत, आप देखिए 32 बाइट का पैकेट, और कहा मैंने क्या भेजा? 65,000 1000 बाइट्स। बाइट्स का पैकेट। तो इतना बड़ा पैकेट भेजूंगा तो गूगल ने इस पैकेट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि पिंग ऑफ डेथ फिल्टरिंग लगी हुई है वहां पे। मैंने, अगर आपको याद हो तो आपको एक वीडियो दिखाया था, डॉन ऑफ द नेट। यस सर। आपको याद है? नहीं। यस सर। चलो, जिनको याद नहीं है, आज मैं एक डॉन ऑफ द नेट भी वीडियो आपको भेजूंगा। आप उस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी उस वीडियो से। जो जो चीजें हमने बातें करी हैं, पर आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा उस वीडियो को। एनिमेटेड वीडियो है। ओके, यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। सर और- पोर्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं? जी जी, वो भी देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मेरी लोकेशन क्या दिखा रहा है? अमृतसर पंजाब इंडिया। अमृतसर पंजाब इंडिया। चलिए, अब मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी प्रॉक्सी सेटिंग कर, प्रॉक्सी मैं इस पे ऊपर लगाऊं तो वो कैसे चलेगी? सर वो तो लोकेशन ही चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली, लोकेशन ही चेंज करनी है। रुकिए, मैं कंट्री चेंज हो जाए। दोबारा खोल रहा हूँ इसको, वेट करिए। अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। तो इसमें मैं लिखता हूं google.com। ठीक है जी। यस सर। तो मेरी Yes, लोकेशन sir. क्या दिखा रहा था? अमृतसर पंजाब अमृतसर इंडिया। पंजाब इंडिया। अब हैकर्स इसको करते हैं जनरली मिसयूज, अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए। सर अभी शो नहीं हो रही स्क्रीन वो। हाँ, मैंने हाइड किया। अब विजिबल है? यस सर। तो गूगल में जाके मैं लिखूंगा फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। एग्जैक्टली, फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। Yes. तो बहुत सारी फ्री प्रॉक्सी लिस्ट मुझे मिल जाएंगी, बहुत सारी कंट्री की प्रॉक्सी मिल जाएंगी।
Sir, we can use VPN also. Yes, we can use VPN also. Exactly. ये देखिए कंट्रीज की आगे सारी, Yes, sir. यूएस की, देन ब्राजील की, अलग अलग कंट्रीज के मेरे पास आ रहे हैं प्रॉक्सीज। ये सर नो, Yes, sir. Yes, sir. इसमें दो चीजें गिवन है मेरे पास, आईपी IP एड्रेस address. और उसका पोर्ट नंबर। Yes, sir. मैं चाहता हूं मेरी लोकेशन जो है मे बी ये यूनाइटेड अरब अरब एमिरेट्स है शायद, मे बी, या ये Yes, यूएस sir. की बात करते हैं अगर हम, तो यूएस का प्रॉक्सी का ये आईपी है और ये उसका Port. Port नंबर number. है। अब आप देखिए Yes. गूगल, इसके क्रोम की सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूँ, और क्रोम की सेटिंग के अंदर लास्ट में एक ऑप्शन होता है एडवांस के अंदर, फ्री प्रॉक्सी Free. प्रॉक्सी Yes, sir. यहाँ ढूंढना होगा थोड़ा सा। एडवांस्ड के अंदर यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, ये देख रहे हैं आप, Open computer proxy प्रॉक्सी setting. सेटिंग दिख रहा Yes, है। sir. Yes, sir. तो इसके अंदर हम जाते हैं और ये देखिए, इसको ऑन करके मैनुअल करके वो वाला यूएस का आईपी एड्रेस का कोड नंबर यहाँ भर दूंगा। Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. और जब Yes, sir. मैं इसको सेव करके रीस्टार्ट, मतलब ब्राउजर को रीसेट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रही है हमारे साइबर में। अगर आप इसको करके देखेंगे, इसको चला के देखेंगे और दोबारा करेंगे व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो आपकी लोकेशन अमृतसर पंजाब नहीं दिखाएगा, आपकी लोकेशन यूएस दिखाएगा। तो इस Excuse तरह me, से sir. यस 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 सर हम कंट्री की जगह सर स्टेट वाइज भी डिफर कर सकते हैं सर प्रॉक्सी को। ठीक, जनरली वो ये ऑटो ऑटो पिक होता है कि वो कंट्री की कौन सी स्टेट उठाता है। हाँ, कुछ पेड सर्विसेज हैं जिसमें आप एग्जैक्टली उठा भी सकते हैं। यस नाउ इसी का एक सॉल्यूशन वीपीएन भी है। वीपीएन से भी सेम काम आप कर सकते हैं, क्योंकि हैकर्स को जब ट्रेस किया जाता है नेट के ऊपर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया, आईपी एड्रेस भी बताया आपका और मैक एड्रेस भी बताया। तो आईपी को आप प्रॉक्सी से या वीपीएन से हाइड कर सकते हैं, एंड इवन आपके मैक एड्रेस को आप स्पूफ कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, मैक स्पूफर मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो अगर मैं गूगल में आपको दिखाऊं तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास एक मोस्ट पॉपुलर है TMAC. यस टी मैक स्पूफर। तो ये आपको मिल जाएगा, टाइटेनियम मैक स्पूफर। आप अपना मैक एड्रेस भी हाइड कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास टाइम है, इसको करके देखते हैं। डाउनलोड नाउ, डायरेक्ट डाउनलोड। Sir, torrent और direct download में difference क्या है? नहीं, टॉरेंट देखो, टॉरेंट पीयर टू पीयर में चल रहा है, और जो डायरेक्ट है वो तो सर्वर बेस्ड है ना। Okay, sir. आप देखिए, आप देख पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके लेट अस सी, यस लेट मी शो यू हाउ वी कैन चेंज आवर मैप। आईपी कैसे चेंज करना है वो मैंने दिखा दिया आपको। Yes, sir. हाँ जी, टी मैक। क्या लिखा है स्क्रीन पे? Technetium MAC address change. अब आप देखिए, ये आपका मैक एड्रेस है, ऊपर आ रहा है, Yes, sir. दिखा रहा है मैक Yes, एड्रेस। sir. Yes, sir. अब Yes, sir. इसमें मैं एक नीचे देखिए रैंडम मैक एड्रेस मैंने सिलेक्ट किया, Yes, sir. ओके, और मैंने यहाँ कर दिया चेंज नाउ। तो आप देखिए आपका मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया। यस और नो? हमने देखा मैक एड्रेस चेंज हो गया। यस और नो एवरीवन? एम आई ऑडिबल? Am I audible, everyone? Am I audible to everyone?
यस सर। Yes, sir. यस Okay. सर। तो इसमें जाके हम अपना मैक अटैचिंग कर सकते हैं। इवन अगर मैं चाहता हूँ कि करूँ मैं और इंदर पकड़ा जाए, तो मैं इंदर के फोन लेके वहां से इसका मैक ले सकता हूँ और यहाँ पे भर सकता हूँ। यस सर। ओके, क्लियर है ये चीज? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को मैं अभी थोड़ी देर में YouTube पे शेयर करूंगा और आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। Yes, sir. आई होप द थिंग्स वर क्लियर टू यू। यस सर। यस सर। चलिए, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।